section 1 of our day is not very formal, is an informal interaction with all the EVGCs. And as ma'am has already said, that we are discussing some questions, some case studies, and some modules here to let us know what kind of work culture we have and what are the situations we can face in our schools. So once again, I welcome you all, and I would like to start this first session with EVGC Sheetal, who is from Northeast District. She is presenting on JJ Act, Juvenile Justice Act. Ms. Sheetal, can we have applause for her? Thank you. Good morning. EVGCs from various districts. Priyanka Rana from Northwest B. Prabhat Ranjan, Northeast. Ravi Shankar, Northeast. Niti, South. Neha Vani Singh from Northwest A. Please come to the stage. Deba ma'am, calling me here. Good morning all audience and my friends EVGCs. आज हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पे बात कर रहे हैं। ये एक FAQs फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमने अपने स्टूडेंट से एंड EVGC से ही कलेक्ट किया है, जिस पे आज हम एक इंटरैक्टिव सेशंस रखेंगे। और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं विथ माइक, क्या आप अवेलेबल हैं फॉर द इंटरैक्टिव सेशंस? पहले मैं एक केस स्टडी बताना चाहूँगी जिसको हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। एक केस है फरीदाबाद के बच्चे का, जिसमें बुलिंग भी आ रहा है और जुवेनाइल के भी केसेस आ रहे हैं। ए क्लास 10 स्टूडेंट फ्रॉम DPS in Greater Faridabad died by suicide, leaving behind a note accusing his school of bullying. इसमें वो बच्चा है जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है एंड बाद में वो परेशान होकर के सुसाइड कर लेता है, जिसके लिए एक FIR भी रजिस्टर्ड होती है और स्कूल के अगेंस्ट ये FIR जाता है। तो द मोटिव बिहाइंड टू प्रेजेंटिंग द केस स्टडी इज़ कि अगर इसको पहले डील कर लिया जाता, अगर इस केस की सीरियसनेस को पहले एड्रेस कर लिया जाता, तो शायद इतने हाई लेवल पे इतने दूर तक बातें नहीं जाती। जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे उनमें भी क्वेश्चंस, उनकी भी क्वेश्चनिंग चल रही है, उनका भी ट्रायल चल रहा है, बट एज़ पर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हम इसको आगे नहीं ला सकते फॉर एथिकल पर्पसेस एंड फॉर मेंटेनिंग द प्राइवेसी। तो मैं FAQ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे सोसाइटी में। अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि एक इंटरैक्टिव सेशन है। इज़ देयर एनीवन कोई बताना चाहेगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे सोसाइटी को? सबसे पहले जो 2015 का एक्ट है, ये एक अमेंडेड एक्ट है और ये 2000 में भी आया था। 2000 से पहले 1986 में भी आ चुका है। तो जस्ट ड्यू टू द राइज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इन इंडिया, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड एंड फॉर देयर केयर फ्री एटीट्यूड, पार्टिसिपेशन इन इलीगल एक्टिविटीज़ ऑफ माइनर्स इंक्रीज्ड. There was 30% rise in crimes by juvenile in the period of 2012 to 15. According to National Crime Record Bureau, the crime of juvenile increased by proportion from 1% to 1.2% from 2003 to 12. 70% of the juvenile accused of crimes were between the age of 16 to 18 years. So for the demarcation of these 16 to 18 years is Juvenile Justice Act 2015 को लाया गया, and the act seeks to hold the child accused of crime accountable not through punishments
but through socio-legal rehabilitation and reformation. Guys, please participate, otherwise it's going to be bore. We are going to be bored. Please participate, I request. I would like to ask why EVGCs needs to know about this act. Anyone? EVGC को इस एक्ट के बारे में जानने की क्यों ज़रूरत है? We all are aware of bullying schemes going on. Yes, ma'am. Ma'am, kindly tell your name. Ma'am, please introduce yourself. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, you are very correct. एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, जब कन्विक्ट से बात हो रही थी तो इन द इंटरेक्शन पता चला कि बच्चे को पता ही नहीं है कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, क्या गलत है, क्या सही है. So I think EVGC को, as in many cases it is found that the juveniles are unaware of right and wrong deeds, EVGCs can play important role in pricking the insight, remorse, guilt, internal locus of control at the initial stage of indiscipline, bullying at school level through assembly talk, class talk and counseling sessions. That's why I think EVGCs needs to know about the act. Content is already prepared. We are not going to show the content. It will be circulated within us, but it's necessary to discuss the frequently asked questions. Now, next question is, what is the significance of sensitizing students about Juvenile Justice Act 2015? हम स्टूडेंट्स को क्यों सेंसिटाइज कर रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बारे में? प्लीज. हेलो. हाँ जी मैम. मैम 2012 में निर्भया कांड हुआ है. उसके बाद में वो भी एक प्रोमिनेंट रोल कर रहा है, क्योंकि निर्भया एक सिर्फ नाम दर्शा रहा है. ऐसा हमारे देश में हो रहा है. और अभी इसीलिए 2016 से 18 को भी इसी प्रीव्यू में लाया गया. अगर हीनियस क्राइम करेंगे तो उनको भी नॉर्मल एडल्ट की तरह उनको किया जा सकता काउंट इन फ्यूचर. और हम ब्रिज है मैम. हम ब्रिज है उनके. एंड हमारे ऊपर भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं. EVGCs तो मैम ये लीगली, क्योंकि भले ही हमारी संख्या 5% हो, बट ऊपर ये पहुंचाया गया है कि दे आर इक्विप्ड विथ कमिटेड पर्सन्स. तो वो अगर भांडा फूटेगा हम पे फूटेगा, इसलिए ये हमारा दायित्व भी है और मैम हमारे को अपने आप को बचाना भी है. सर, आई नो योर नेम, बट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. नरेंद्र कुमार सहरावत. ओके सर, थैंक यू. Sir, you are correct, and I just want to add what we have scripted, just discussing between us, is that purpose of education is to empower the student, and sensitizing on Juvenile Justice Act will help students to acknowledge and aware the constitutional provisions exist against and for them. It's not my, but it's question from society itself. What is Juvenile Justice Act 2015? कोई है जो बोलना चाहेगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है क्या 2015 वाला, क्योंकि इट इज़ एन अमेंडेड फॉर्म ऑफ 2000 एक्ट. Anyone? Juvenile Justice Act? Okay, Juvenile Justice Act 2015 is the major legal text on child protection in India. The Juvenile Justice Act pertains to provisions for children found in conflict with the law in India and for children in need of care and protection or adoption of law. So the Act has Juvenile Justice Board and Child Welfare Commission respectively to look after. The Act seeks to hold the child accused of crime accountable not through punishments but through counseling. इसमें दो important चीज़ है. एक CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमीशन, एंड अनदर वन इज JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. इन दोनों का काम अलग अलग है. CWC उन बच्चों को देखता है जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वाइल JJB जो बोर्ड है वो उन बच्चों को देखता है जो
कन्फ्लिक्ट है, जो लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट में हैं, अगेन आई वांट टू ऐड कि 2015 एक्ट के तहत जुवेनाइल, चाइल्ड एंड चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया है. But before that, I would like to discuss what does the Child Welfare Committee do exactly. क्या करता है Child Welfare Committee? तो Child Welfare Commission deals with children in need of care and protection, which conduct inquiry on the matters related to the safety of the children and will direct to investigate and submit reports in issues related to child to district Child Protection Unit, Child Welfare Officers and non-governmental organizations. It also conducts inquiry to find a fit person who can take care of children who is in need of care and protection. The Commission will select the institutions to shift the child that requires special support on the basis of the child's age, disability, gender and need. The Commission will ensure rehabilitation, restoration, care and protection to the child. It can give instruction to parents or guardians or the people who are fit to provide facilities necessary for the well-being and proper development of the child. It collaborates with the institutions involved in the care and protection of children like police, NGOs and other agencies to provide services to a child in need of care and protection. Commission make all efforts to find the families of lost and abandoned children and restore them to their families. बेसिकली जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो दो तरीके से काम कर रहा है एंड दो बॉडीज़ के थ्रू काम कर रहा है. एक का काम है कि बच्चों को प्रोवाइड कराना प्रोटेक्शन एंड दूसरे का काम है बच्चों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना सोसाइटी को, जो कि हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के थ्रू देख सकते हैं. जो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ के साथ काम करता है. व्हाट इज़ चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड व्हाट इज़ जुवेनाइल, हु इज़ जुवेनाइल एंड हु इज़ चाइल्ड, कोई बताएगा? To whom we call juvenile, to whom we call child in conflict with law and to whom we call a child. Please, is there any difference? It is an interactive session. Please interact, please get involved in the interactions. Yes, Shilpi ma'am, are you going to say something? Please ma'am. Hello. हाँ जी. Hi ma'am. Ma'am, This side. Okay. Mahima from Southwest B. So child is someone who is below 18 years and a child who is in conflict with law is whoever has committed a crime. And juvenile? Juvenile is also below 18 years. Okay, ma'am, you are correct. चाइल्ड एक 18 साल से कम का बच्चा है, एक लेमैन, एक कॉमन मैन की भाषा में, वाइल जो जुवेनाइल है इन लीगल टर्म इट इज़ बिलो 18 इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्रिमिनल प्रोसीजर्स. वाइल जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ है ये वर्ड 2015 एक्ट से जोड़ा गया है और 18 ईयर से कम का कोई भी बच्चा है उसके खिलाफ अगर कोई एलिगेशंस है और क्रिमिनल प्रोसीजर्स चल रहा है उनको इस सेक्शन में रखा गया है. द वर्ड इज चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ. Then next question is how does the board ensure free legal aid for the child? बोर्ड जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो कैसे इंश्योर कर रहा है फ्री लीगल एड? हम सभी को नालसा एंड स्टेट लेवल पे जो एड लीगल अथॉरिटी है सबके बारे में पता होगा, तो उसके थ्रू कर रहा है. अगर कोई अपने इनपुट्स देना चाहेगा, किसी के पास और डिटेल्स है तो प्लीज़ कम विद द इनपुट्स. कोई बता? यस मैम. माइक मंजुला मैम को प्लीज माइक दीजिए. मैम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है मैम और सबके बोर्ड लगे होंगे हमारे स्कूल्स में, उनके नंबर्स भी हमारे स्कूल्स में अवेलेबल है नीले उस पर. जरूरत पड़े आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो मैम. और वो आते भी हैं मैम मीटिंग्स लेने. उनकी ये ड्यूटी है कि स्कूल्स में पर्टिकुलर टाइम पे साल में चाहे एक बार शक्ल दिखाएं, वो आते हैं मैम. वो बातों को अपना अवेयरनेस भी देने आते हैं और बताने भी आते हैं कि हम यहाँ अवेलेबल हैं थ्रू द लीगल लिटरेसी कैंप विच इज गोइंग ऑन इन द स्कूल. यस मैम. हाँ, थोड़ा सा एज का मैं बताना चाहूँगी क्योंकि पहले वाला एक्ट था उसमें 16+ एज थी और अब जो अमेंडमेंट हुआ है चेंज उसमें 18+. दिस इज़ अ वेरी मेजर पॉइंट विच यू हैव मिस्ड, क्योंकि पहले 16 साल तक के बच्चों को ऑफेंडर माना जाता था और उनको जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में
क्योंकि हमारे यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली का मुझे पता है, सेवा कुटीर नाम की संस्था है, उसके अंदर बना हुआ है, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिमांड होम, तो वहाँ रखा जाता था। लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ तो उसमें जो एज था वो 16 से 18 पे ले आए थे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैम इशू। 18 से 16 या 16 से 16 से 18। मैम आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। पहले 18 साल तक के बच्चों को बच्चा माना जाता था, लेकिन अगर वो हीनस क्राइम में है विच विल बी डिसाइडेड बाय जेजेबी। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन उसमें भी जो क्राइम का जो लेवल था, हाँ। जैसे आपने हीनस क्राइम करा और एक होता है जस्ट पेटी ऑफेंसेस, हाँ, तो उसमें भी डिफरेंस आया है और हाँ, वो हाँ। भी पता होना चाहिए। हाँ मैम, थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर वी आर गोइंग टू कवर दैट। मैम योर गुड नेम मैम? सर मंजुला मैम। प्लीज अगर आप खड़े हो जाए। मंजुला मैम, जहाँ तक मुझे भी समझ में आया है कि पहले 18 था मैम, 2012 तक, 15 में अब 16 वाले तो कभी कभी मैम इसमें लाइमलाइट में ले आए हैं। सॉरी मैम। मैम एक बार मैं बता दूं, उसके बाद कुछ होगा तो आप प्लीज़ ऐड ऑन करिएगा। पहले क्या था कि 18 ईयर्स तक के बच्चों को एडल्ट के साथ जेल में रखा जाता था, बट देखा गया, ऐसा पाया गया कि जेल में जाने के बाद, एडल्ट के साथ रखने के बाद उनके में रिहैबिलिटेशन कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कोई रिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई रिहैबिलिटेशन नहीं हो रहा है। इसलिए उनके लिए अलग से स्पेस बनाया गया जिसमें हम उनको सोशियो लीगल कुछ ऐसा इंटरवेंशन देंगे और उनको कुछ स्किल्स सिखाएंगे जिससे वो बाहर आके फिर से काम कर सके। और 16 से 18 साल के ब्रैकेट में अगर कोई बच्चा है और अगर उसने हीनस क्राइम किया है, इस एक्ट ने क्राइम को डिफरेंट सेक्टर में रखा है। इस क्वेश्चन के साथ हूँ कि व्हाट इज हीनस ऑफेंस अंडर जेजे एक्ट। हीनस ऑफेंस कोई बताएगा? यस सर। एक्चुअली सर जेजेबी डिसाइड्स। यस सर, so please stand. Rape and murder मैम। yes sir. Sir, there are 2 cases again in court where which is called rare of rarest case. एक टर्म आता है rare of rarest case, उसमें ये किसी को वो भी कर देते हैं इंटेंसिटी ऑफ केसेस देख करके, इंटेंसिटी ऑफ विक्टिम्स लॉस देख करके, इंटेंसिटी ऑफ क्रूएलिटी देख करके। मेरे पास एक केस है मेरे स्कूल में अभी। हाँ हाँ एक बच्चे पे लगा है कि अटेम्प्ट टू मर्डर, जी। 1 साल की सजा सुनाई, एज उसकी 17 साल है बच्चे की, और 1 साल की सजा सुनाई और उसने अपना जुगाड़ लगा के उस 1 साल की सजा को 5,000 रुपये में क्लियर करवा लिया। ये अंदर की बात है, मैं शेयर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अपने भाई बहन है, शेयर कर लूं। let us stick to what does the law say, because सर जिस तरह के आप बात बता रहे हैं उसका खतरा क्या होता है कि we start glamorizing these things, you know. I happened to work in a school, I was posted in a school where it was crime infested. बहुत सारे बच्चे क्राइम करके because of Juvenile Justice Act. By the way, Juvenile Justice Act was implemented in year 2000, and these जो आप लोग जिक्र कर रहे हैं, they are what will you call them? Amendments to the act. From time to time, the act was amended considering the ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। तो जब बच्चे अब हमारे स्कूल में उस बच्चे ने बाकायदा चाकू मार के अपने अंकल को धक्का दिया एंड ही वॉज इन जुवेनाइल होम। तो जब वो वापस आता था स्कूल में पैरोल पे या जो भी कह लीजिए उसे, तो वो ये कहता था अरे यार इससे डरने की क्या बात है, वहाँ तो 3 टाइम अंडे मिलते हैं, 3 टाइम दूध मिलता है। तो द अदर्स वर वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस। वो तो हीरो वर्शिपिंग थी, अरे कर लो, मार लो किसी को। तो दिस इज वेयर, जैसे शीतल बता रही हैं, दिस इज वेयर द नीड इज कि जब हम ये बताएं कि इट इज नॉट अ वॉक इन द पार्क। जब आप जुवेनाइल होम में रहते हैं, जो वहाँ रहता है वो असली बात बताए। वो अपने जो 16-17 साल का बच्चा है, टीनेजर है, वो अपने आप को तो बचाता ही है,
और ये केस सर 5,000 रुपये में ख़त्म नहीं होता है, ये लाइफ लॉन्ग चलता है, आपके नाम पर रिकॉर्ड आ जाता है दैट यस दिस पर्सन, चाहे वो आपकी आइडेंटिटी छुपाते हैं, विच जो एक्ट्स हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो बहुत हद तक बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं कि हम उसको ग्लैमराइज करें कि नहीं जी वो बच के आ गया, ये ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। I will not, एक second, I will not focus on that part, I will just focus on the part कि yes it happens and am I right Sheetal कि juvenile, yes it is, there are two aspects, child in conflict with law, this child is called child in conflict with law, और उसके ऊपर बाकायदा फाइल बन जाती है और उसका रिकॉर्ड आ जाता है, उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे आता है, दे मे नॉट गेट अ जॉब। सो वी विल नॉट डिस्कस दिस एनी फर्दर बिकॉज हमारी सेकंड उसमें भी आना है एंड इसको आप कंक्लूड करिए। थैंक यू शीतल। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि ब्लैक एंड वाइट में रहना बहुत आसान है, बट द पोर्शन इज़ ग्रे, उसको डील करना बहुत मुश्किल है। एंड हमारा सारा जो टॉपिक है, हमारा जो डीलिंग एरिया है, वो मोस्टली ग्रे है, हिडन है। हाँ जी, ओके ओके मैम एक चीज ऐड करना चाहूँगा, जैसे वंदना मैम ने बहुत प्रैक्टिकल और हमें यहाँ कुछ हम जैसे बेसिक मोटे मोटे घर पे हम चीज है हाउस इज वहाँ पे आपको लॉ क्या कहता है, हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या है, सोसाइटी में क्या हो रहा है वो पॉइंट रजिस्टर है, काउंसलिंग हमारा है, वो क्या कहता है। क्या होगा, हो सकता है हम आप एग्री करते हैं, आप लोग बहुत लोगों अब बात अरे कोर कंपोनेंट हमें पता, नंबर 1, नंबर 2 आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दिस इज जस्ट बाय यू फॉर यू, इस पार्टिसिपेट आप लोगों के मैं बहुत कुछ करती हूँ तो नोट्स ले रहे हैं, याद नहीं था, नोट ले लीजिए, आपके काम आएंगे, आपको आती क्वेश्चन करना ओके। और आप सभी लोग खड़े होकर क्वेश्चन कीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड भी होना चाहिए ना, किस बंदे ने क्या क्वेश्चन किया है। सर प्लीज आस्क द क्वेश्चन। अमित सर। मैम एक बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे नरेंद्र सर ने भी बोला, वंदना मैम ने बोला कि वहाँ पे बच्चे ये बता रहे हैं, ये मैसेज वहाँ पे एग मिलता है या फिर अच्छा उनको फूड मिलता है या 5,000 केस रफा दफा हो गया, लेकिन एज एन EVGC हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को ये मैसेज कन्वे करें कि एक बच्चा जब जुवेनाइल होम में जाता है तो वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता है, अपनी सोसाइटी से दूर हो जाता है, उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट वो है वो डाउन हो जाती है और कई सारे ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी लाइफ में आते हैं। इस वजह से हमें इन क्राइम वाले चीज बच्चे को दूर रहना चाहिए, सिर्फ बच्चे को ही नहीं, हर किसी व्यक्ति को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो हमें उन नेगेटिव जो मैसेज है उसको ज़्यादा कन्वे करना। वेरी बेटर देन क्योर। अगर हम एज एन EVGC पहले ही प्रिवेंट कर देते हैं, प्लीइंग के टाइम पे, इनडिसिप्लिन के टाइम पे एक इंसाइट बना उनके अंदर जनरेट कर देते हैं, एक रिमोर्स, गिल्ट क्या है, सारा कुछ, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग अगर हम बता देते हैं तो बच्चा इस लेवल तक जाएगा ही नहीं कि उसको जुवेनाइल बनना पड़े, उसको कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ आना पड़े। एक लास्ट क्वेश्चन है
ऑन व्हाट ग्राउंड चाइल्ड कैन बी डिटेन फ्रॉम एजुकेशन? क्या हम चाइल्ड को पढ़ाई से रोक सकते हैं? हाँ जी, बोलिए। नहीं, हम लोग जो है किसी भी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को, चाहे वो जुवेनाइल के अंडर ट्रायल में है या कैसे भी है, तो उसे नहीं रोका जा सकता। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि हमारे प्रिंसिपल सर ने एक बच्चे को ऐसा ही कहा। वो मर्डर केस में बच्चा गया था, तो वहाँ से जब उसे वापस किया गया तो एडमिशन के लिए वो स्कूल आया तो उसे डिनाई कर दिया, बट उसके बाद कोर्ट के थ्रू उसे एडमिशन हमें देना पड़ा। तो हम उसे डिनाई नहीं कर सकते, हमें एडमिशन देना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर। मैं भी एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। मेरे स्कूल में बोर्ड एग्ज़ाम का जब सेंटर पड़ा था, तो एक बच्चा था जो बोर्ड एग्ज़ाम्स देने आया था विद एस्कॉर्टिंग ऑफ पुलिस की गाड़ी के साथ। हम सभी उसको देख रहे थे। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जो ग्रे पार्ट है उस पर थोड़ा बच्चों को बताना है कि अगर उनको नहीं भी सज़ा मिल रही है, बट स्टिल दे आर नोन विथ कि ये कुछ ड्रॉबैक्स के साथ हैं, उनको एक तिरछी नज़र से देखी जाती है। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। Thank you so much, Sheetal ma'am. As educational vocational guidance counselors, we all know कि जिस डायरेक्शन में, जिस साइड पर आज आप बैठे हैं, रोज़ स्कूल्स में हम ऑपोजिट साइड होते हैं। हमारे स्कूल में हमारे ऑडियंस, हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स, स्टाफ मेंबर्स, हमारे प्राचार्य, ये सभी लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है उसको एक रिसेप्टिव मोड में लेकर शायद हम अपनी नॉलेज को एनरिच भी कर सकते हैं, साथ में आप ऐड ऑन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ पार्टिसिपेट। इसे एक वन वे कम्युनिकेशन ज़रिया ना छोड़कर हम टू वे कम्युनिकेशन, एक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो उसकी तरफ ले जाते हैं। एंड आई इनवाइट आवर नेक्स्ट प्रेजेंटर हु इज़ मालविका। शी इज़ फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बी डिस्ट्रिक्ट, साउथ वेस्ट ए डिस्ट्रिक्ट, एंड शी विल बी प्रेजेंटिंग ऑन IT Act 2000. For your information, this act has been amended in 2008. I welcome Malvika. Please come. Thank you. A very good morning. Am I audible to all? Okay, I start with the case study. Here it goes like, a student of 12th who was 18 years old having an affair, a romantic relationship. With his classmate who was 17-year-old, he kissed her with her consent and asked her friend to click the picture of their private moment. He was pressurized, the girl, for having physical intimacy as expression of their love and affection. She liked him, but she was not comfortable with the idea. She broke up with him. He started blackmailing her regarding the picture that was clicked in the past. One fine day, in anger, he posted the picture online. His friends posted it and reposted it and complained and commented on it. The rumors started spreading in the entire school. This girl reached out to the counselor. What next? So here the question comes for you guys, all the counselors. What is the role of a counselor in this situation? This didn't happen in the purview of the school premise. Then is this a role of a counselor to tackle it? Anyone from the audience? मेरा क्वेश्चन आपको ये है, यस मैम, काउंसलर इस सिचुएशन में क्या करेगा? Thank you so much. So I encountered with one of the case in my school, and the child came to me with a complaint that I have my pictures with one of my friend and who is blackmailing me on that basis, and my classmates also know about it and they are like teasing me and all. So first of all, what I did, I usually formed a rapport with the child and I explained her rules and regulations in the which is mentioned under cybercrime, and I confront her ki you can take a step about it, and also then I worked upon
द परसेप्शन ऑफ अदर्स, लाइक जो उस क्लास में रह करके बच्चा जो फील करता है, दैट नेग्लेक्टेंस, हाउ टू डील विद दैट। तो उसको एक क्लास में एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में लाइक एक क्रिएट करना विद द सेल्फ, एक पीस क्रिएट करना, उसको उस चीज़ पे काम किया गया। तो एक तो रूल्स उसको बताए गए, एंड आई कैन नॉट फोर्स द चाइल्ड टू मेक अ कंप्लेंट बिकॉज इट इज़ हर कंसेंट, बिकॉज विदाउट हर कंसेंट आई कैन नॉट फोर्स हर कि तुम्हें कंप्लेंट करना ही होगा साइबर क्राइम में। आई हैव टू मेक अंडरस्टैंड कि तुम अगर चाहते हो, अगर तुम इसके लिए स्टेप ले सकते हो, आई मेड द अवेयरनेस, बट taking a step about it or not, that will be the child consent only. I cannot forcefully do that. Thank if you, I am ma'am. not wrong. Very well said. Thank you. I would just put up 2-3 things here and there. मैम Yeah. एक ऐड ऑन करूंगा, मैम ने बहुत सही बोला, बट अगर आप लॉ के हिसाब से चलोगे तो मैम वो 18 साल है, क्रॉस कर चुका है, वो 17 साल की है, वो बच्ची माइनर है, तो उस पर केस बनता है। Very rightly said, sir. केस बनेगा, बच्चा पुलिस में रजिस्टर करेगा, बट ऑफ कोर्स जब भी हम केस रजिस्टर करते हैं या FIR दर्ज करते हैं, ऑलवेज द कंसेंट ऑफ द पर्सन इज रिक्वायर्ड, because here our child is 17 years and younger, then his parents become the legal authority to file a complaint, not an EVGC, not the school, because ये school premise में नहीं हुआ है। Secondly, मैम ने बहुत rightly कहा, पहले हम रैपर बनाएंगे, बच्चे को रिलैक्स कराएंगे, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन से जो भी उसने दिया है उसकी पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसके पेरेंट्स को बता के, उनको गाइडेंस में लेके उनको बताने की ज़रूरत है कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। ओके, इफ द चाइल्ड वर ऑफ द सेम एज, Malika, there is a question. Yeah. What if this happens in a classroom? The incident she shared, it happened in the classroom only, in school premises. अगर वो क्लासरूम में होगा, her question is, I guess she will ask. My only question was that you already have written in the case study that it's happened in front of the classroom and click their pictures. okay, I think the version that Yeah. in case this happens in the classroom, keeping in mind आप सबके पास फ़ोन है and everybody is well aware of the technology. So what the legal guidance says is कि सबसे पहले आप school authority को बताएंगे, here it becomes the HOS, and you will ask for a committee to recite, जिसमें एक action taking plan बनेगा, where it recites with 2 senior teachers, 1 TGT teacher and 1 SMC member, where you're going to plan ki how far the grievances is and how you want to deal with it. Based on the decision taken by the committee, the case is going to be filed, but in the guidance and in the consent of the parents. Everything cannot be taken in control by the school authority, because legal guardian बच्चे के parents हैं, हम नहीं. Okay, if they were of both age, then हाँ, स्कूल के अंदर की HOS की है, दैट्स वाई द एक्शन टेकन हियर इज कि उन्होंने पेरेंट्स को बताया, कमेटी बिठाई और ये डिसाइड किया इस प्लान में प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, पर एक्शन यहाँ पेरेंट्स को ही लेना है, whether they want to file a case or whether they don't want to file a case. एक्शन नहीं लिया, पेरेंट्स ने भी एक्शन नहीं लिया, स्कूल ने भी नहीं लिया, तो वो तो वहाँ पर देन अगर कुछ मेजर हो जाता है देन वो किस पर आएगा? तो वहाँ पर स्कूल ये बोल सकता है कि वी इन्फॉर्म द पेरेंट एंड दे डिड नॉट टेक द एक्शन, वो वहाँ से स्कूल इस तरह से। See, in many of our cases where legal things are binded, parents mostly do not take action. Even if they take an action, they take their complaint back. So that is their responsibility. See, we all have, yeah, everybody have their own boundary, and we cannot forget that the child is somewhere we are providing him with the education and the guidance so that he can have an optimal development, but we are not the legal parent of the child. Until unless we take a political, legal custody of the child, we cannot take the rights and responsibility of the child. Vandana ma'am, I have a question here, and I think you will be better able to guide us. Just before this, I will, उनके question का ये था कि ultimately bottom line is that parent is the sole responsibility
sole guardian of the child, even in case of CSA. नहीं है? Actually, we were given to understand that the first informant, if the child informs us and tells us that the child hasn't shared it with anybody else, he has shared with us, then we have to inform. Because I was into such cases twice, and I was totally safe. Gunamrit ma'am will be better able to guide us because she has dealt with and she was in really great trouble because of that. I will not discuss that case because that is very, very. Am I audible? बहुत controversial है. I want to discuss the present case. जब हमारे स्कूल में होता है, it is the responsibility of the HOS. लेकिन कई बारी हमारे HOS थोड़े घबरा जाते हैं and they want to play it down. You know कि ऐसे कर लेते हैं या EVGC सामने ही ना आए. Remember कि आप अपने HOS को बोल सकते हैं कि this is not your fault. तो you have to report. And पुलिस एकदम पकड़ नहीं रही क्रिमिनल को. पुलिस भी समझाती है बच्चों को. In this case, when the HOS complained to the police, पुलिस ने दोनों को in the presence of a lady police officer दोनों को समझाया. And the consequences. फिर बच्चे भी समझ जाते हैं. And usually ऐसे ही होता है कि they take the case back. And we have to normalize. They are growing children. You see, this age is such, there is curiosity, there is experimentation. The only thing is they just don't know they don't know about their Lakshman Rekha. Kahan tak? So we have to tell our students, tell them about the consequences कि कैसे वो आगे बढ़ के उनकी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है. 12th स्टैंडर्ड का बच्चा तो बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएगा अगर जुवेनाइल कोर्ट ले गया तो. So HOS should be guided to at least complain to the police ताकि सब थोड़े से alert हो जाएं. It may not have कि वो सीधा 18 से ऊपर है, पॉक्सो लग जाएगा और वो जेल में चला जाएगा. But this has to be done. Okay? Any other question? Am I audible? Yeah. So मेरा क्वेश्चन वंदना मैम से है. जैसे कि उन्होंने बोला कि पेरेंट्स इज द सोल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, सो दे विल टेक द डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट. So but in the case of POCSO, like in the case of child abuse, उसके अंदर तो we have to take the action. Anyhow the parent knows about it or don't know about it. But if we know it, then we have to take action about it. Regarding that, we have to complain of this case in the child line under the POCSO Act. So as per the POCSO, the police has to report the case within 24 hours to the magistrate. It is not that the counselor has to report within 24 hours. The counselor can even do the counseling. The counselor will have to inform the parents. But yes, mandatory reporting है. जब बच्चा अगर घर जाए और there is sexual abuse, तो वहाँ पे it can happen again. तो it can be done through 1098. स्कूल से ही 1098 को इन्फॉर्म किया जाए, बट पेरेंट्स हैव टू बी इन्फॉर्म्ड. बट मैम 1098 पे तो स्कूल ही लाइक ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल काउंसलर ही करेगा या फिर स्कूल करेगा, बट स्कूल ही करेगा ना, उसमें तो पेरेंट का कंसेंट की जरूरत नहीं है. बिकॉज इन मैनी केसेस पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द सेक्शुअल अब्यूज. जब पेरेंट Whenever the parent is involved, then the things get changed because the legal guardian is the perpetrator. So when in that case, then direct you will complain to the police. See, but till the time the parent is not the perpetrator and child is safe, what is being told there, we need to make the child safe. That is the utmost importance and the priority of whomsoever is dealing the case, whether it's the HOS, whether it's a counselor or any other family member. In case the child is safe and secure,
then we can take a leverage of time and ask for a committee to sit and make a wise decision which is for the betterment of the child. There is a complete session on POXO after this, so we will not talk about POXO. But agar, if it is not the parent involved, then FIR will never be registered in the absence of parents. Never. Actually, वो लेते ही नहीं है. Gunamrit ma'am, one thing, I had a similar case, there was one thing, the child was clearly writing the complaint against the perpetrator, but as soon as the parent arrived, the child turned hostile. So they told me that you have to, your parents, you don't have to inform the parents, because the children often they turn hostile in the presence of parents, and they keep on pressurizing this thing. So in one case, I went with the child to the police station, and I made it sure that she doesn't interact with that parent. And she was pressurizing her that you have brought bad name to us and all. But with this kind of thing, she was able to give the written complaint to the police station. So we have to ensure that the child is not child is safe, as well as the child does not turn hostile in the presence of the parent. The child, okay, we leave POXO to the other session, but even when the case goes to the court, then also the child turns hostile, क्योंकि उसने वापस उसी environment में जाना है. This is what I realized in so many cases of our school. But POXO will be dealt with later. She is discussing the present case. Keeping in mind the IT Act 2000. One more thing, यहाँ पर peer counseling की भी, because the situation is happening in a classroom. And the child has to be in the class only. No. And the child has to face the other students also. So everything is good, but the thing is कि जब बच्चा बार बार क्लास में आएगा और थोड़ा दूसरे बच्चे उसको लेबल आउट करेंगे, तो peer counseling is very important at this stage. Hello ma'am. Here this side. Back. Hi Malvika. Can you pause for a sec? I'm so sorry. Okay. Can I just explain you what is going to be in an action plan for a counselor? It's just a okay, not very long one. जैसे कि अभी सबने स्कूल हमारे पास ऐसे केस आते ही रहते हैं, फॉलो करेंगे. देयर इज नो सिंगल थंब रूल कि जहाँ पे आप एक ही चीज़ को हर जगह अप्लाई कर सकते हो. तो जब मेरे पास इस तरह के केसेस आते, हेलो, एम आई ऑडिबल? तो मैं ये कह रही थी कि हर केस में हम सेम चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते. जब मेरे पास इस तरह केसेस आते हैं तो आई मेक श्योर कि चाइल्ड इज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि अपनी बात को पेरेंट्स तक कन्वे करे, कि जो बच्चा सफ़र कर रहा है एटलीस्ट पेरेंट्स को बताए. देन आई ऑल्सो मेक श्योर कि अगर बच्चे के पेरेंट कन्विंस नहीं होते हैं केस को रिपोर्ट करने के लिए, देन मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चा एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंट हो खुद ही केस को रिपोर्ट करे, जिसके लिए मैं रेगुलर स्कूल में सेशंस भी लेती हूँ. जस्ट 1 minute बेटा, दिस इज कमेंडेबल व्हाट यू डूइंग, दैट यू आर एम्पावरिंग द चाइल्ड टू फाइट योर ओन बैटल्स, बट ऑल्सो देयर इज अ बॉटम लाइन दैट unless and until the parent is there with the child, the parent is the legal guardian of the child. तो मेरा और किसी और के कहने, वो पुलिस वाले उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे ही बुलाएंगे. यस मैम, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है. एंड इन फैक्ट जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, दे आर ट्राइंग टू सर्कमवेंट दिस, कि भाई बच्चे कई बार हॉस्टाइल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट पेरेंटल प्रेशर. अल्टीमेटली दे आर रिलीज्ड इन द केयर ऑफ द पेरेंट, चाहे वो कितना भी हॉस्टाइल हो. दीज आर सम ऑफ द लेकुना इन द सिस्टम. बट आपने बहुत अच्छी बात कही कि वी आर, ये सारा जो इनिशिएटिव है दैट इज फॉर एम्पावरिंग द चाइल्ड, कि उसने अगर आपसे बात की है, उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, फिर वो किसी और से भी कह पाएगा, and so on so forth. So Malvika, please carry on. Let's try to finish this. Okay. Keeping in mind the case, the strategy is going to keep on changing as the case changes. So in this case, the strategy is going to be, first we're going to develop a rapport with the child. If the child is feeling too anxious, we're going to relax the child down.
And then if he wants to be expressing his trauma or anything, then we're going to deal with it. Once that is done, we're going to give the child an assertive training. This is where we're going to talk about what's going to happen, how he needs to act, and how we're going to be acting with him. This happens with the child. Now come to the school system. To the school system, the teacher, first you need to inform the HOS, ask for a committee to decide, where all the members sits and wrote down what is going to be the action plan. The parents are going to be called, parents are going to be informed of the thing or the situation that happened in the school. After that, sensitization of the classmates and associated children, because the child is going to be coming back to the class after the entire trauma that he or she has gone through. So it is very important for us as a counselor to provide them with the life skills along with sensitization that this has happened and how they are supposed to act and what is their moral responsibility to themselves and to others. Along with this, there should be a sensitization for the teachers so that there is no spread of the rumor in the premise. At least we can put the entire information into a done and dusted bed. So this is going to be the strategy. Come to the rest of the question. Okay, in the case earlier, when we just exaggerated a case and we found out if they had a little more grievances, depending on how deeper the crime is, the penalty is going to be charged. It ranges from 3 lakh to 10 and 3 days to 10 years of imprisonment. It is not fixed. And along with IT Act, there can be other charges which are going to be imposed. Like when we were having a discussion, we automatically focused on POCSO. I know in POCSO there is a segment which talks about pornography and which talks about of picture being exposed. But here we are particularly talking about IT Act. So when we talk about IT Act, we would be dealing with commenting, posting, and spreading those pictures and reels around, which does not involve any kind of obscenity in it. In case there is an obscenity in those pictures, in those tags, then it ultimately doesn't come under IT Act. It's going to take charge through POCSO. What if the child, this is my question to you, I don't have an answer. We're just discussing over here. So what if the child abused a teacher or an adult online? Then what happened? Can we put an FIR to it? Anybody? क्वेश्चन ये है, अगर कोई टीचर या कोई एडल्ट को अब्यूज करा जाता है बच्चे से, बच्चा कर रहा है, बच्चा परपिटेटर है, वो ऑनलाइन टीचर का मीम बनाता है, टीचर के लिए रील बनाता है, तो एज अ कलीग, as we being adult, what is our responsibility in this case? Will we put the child behind the bars for his action? Will we report a case? What are we going to do? Okay. तो ये स्कूल अथॉरिटी करेगी या इंडिविजुअल करेगा? मैम, 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, अगर आपको जो टीचर सफरिंग है वो आपके थ्रू आ रहा है तो आपका काम है अवेयरनेस, बच्चे को काउंसलिंग करना, टीचर को काउंसलिंग करना। पहला स्टेप हमारा ये है। दूसरा स्टेप, अगर टीचर कंप्लेंट कर रहा है HOS को, हेड ऑफ द फैमिली, तो HOS एक कमेटी बनाएगा जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका नाम भी होगा, और उस कमेटी में उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, 3 दिन 7 दिन। उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली हमें काम करना होता है, बट हमारा काम काउंसलिंग का तो रहेगा। ये पहला चरण है। इसमें मैम 6 महीने 3 महीने एज पर द सिचुएशन आप उस पर काम कर रहे हो, पर बच्चे में सुधार नहीं आ रहा,
नेक्स्ट स्टेप है मैम, आप उसको असेसमेंट के लिए आगे अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल स्कूल लेटर हेड पे विथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग साथ के साथ चलेगी। थर्ड स्टेप मैम, अगर इसमें भी काम नहीं होता है तो मैम आप बच्चे को एक्सपेल कर सकते हो। Okay, as rightly said by sir, but there are few tips and bits that I would like to add here and there. बच्चे Yes, की ma'am. एज भी देखनी पड़ेगी। कोई बच्चा टीचर को तंग कर रहा है और लबू जा रही थी, कॉमन सा इंसिडेंस होता है कि बच्चा सुनने में आया, देखा मैंने नहीं है, कि अगर कोई टीचर पढ़ा रही है तो बच्चे या कमेंट करना तो इट्स वेरी कॉमन, लेकिन ऐसा सुनने में भी आया है कि बच्चे भी चौक मार देते हैं टीचर को, या जैसा आपने कहा कि कोई छेड़छाड़ का वो हो जाता है, तो डेफिनेटली टीचर हैज़ टू टेक एक्शन। सबसे पहले ड्यूटी है टीचर की एचओएस को इन्फॉर्म करना, और उसके बाद एचओएस क्या करेगा ये एचओएस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डेफिनेटली कमेटी तो फॉर्म होगी को उसके सामने पेश होना पड़ेगा, और आगे जो एक्शन होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जस्टिस जुबिलाइन या डेलिंक्वेंसी की, तो एज के अकॉर्डिंग सारा आगे प्रोसीजर होगा। दिस इज़ माय पर्सनल व्यू। मैम एक चीज़ और ऐड करनी है, जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन क्लास या फिर स्कूल के अंदर कोई बच्चा अब्यूज़ करता है टीचर को, तो टीचर के साथ वो इंसिडेंट पर्सनली हुआ है, तो इस वजह से पर्सनली भी कोई केस किया जा सकता है टीचर के ज़रिए, और क्योंकि ये स्कूल के अंदर हुआ है तो वो टीचर ये भी कोशिश कर सकता है कि वो स्कूल के जो अथॉरिटी है उसके थ्रू अपने केस को आगे बढ़ाए, और दोनों ही सिचुएशन में ये केस फाइल हो सकता है। Rightly said, sir. You can file the case through the system as well as personally, depending on how deeper the crime is. But when it happens into official website, then what we need to do is first click a screenshot of the entire abusive statements, keep it inside, block that out, and after that seek help for yourself legally and for your mental health. This is how the procedure works. Even if the child is using Instagram and he's been abused by a different child, in that case he's going to keep the screenshot of the text messages. अच्छा, वो स्क्रीनशॉट खींचेगा, अपने पास रखेगा, उसके बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट का, वो वहाँ पर क्लिक करेगा, मेल करेगा जो उसने स्क्रीनशॉट खींचा था, ये लीगल एक्शन लिया जाएगा, इंस्टाग्राम उस यूज़र आईडी को ब्लॉक करेगा। आप चाहते हैं तो अपने 5 क्लोज फ्रेंड से भी कह सकते हैं कि वो रिपोर्ट करें उस यूज़र को, तो इससे स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस। ये तो हमने किया ऑनलाइन मीडियम के वाइज। उसी के तहत आप आईटी का रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस की वेबसाइट में जाके, और वहाँ पर रिपोर्ट करके फिर से आप स्क्रीनशॉट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बच्चा छोटा है तो नेम पेरेंट्स का रजिस्टर होगा। एंड इन केस ये स्कूल की वेबसाइट पे होता है, तब बच्चे को वो स्क्रीनशॉट स्कूल में प्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। वाया मेल द चाइल्ड विल राइट एन एप्लीकेशन along with the screenshot and what happened and the entire scenario in a form of a grievance towards the school. Then the committee resides down and decide what is to be done with the child. Along with this, I would like to add, whenever a legal constitution process happens, what they check is what's the mens rea of the child. There is this word called mens rea. इसका हिंदी में नाम नहीं है मैम। That means intent. इंडिविजुअल का इंटेंट क्या था? अगर उसका इंटेंट दूसरे को हार्म करने था तो इसलिए उसकी पेनल्टी बढ़ जाती है। अगर वो मजाक या अटेंशन के लिए था तो उसे साइकियाट्री के लिए असिस्टेंट की ज़रूरत के लिए रेफर किया जाता है। प्रेसिडेंट वाला भी अच्छा मालविका प्रेसिडेंट Okay, there was this case happen in Bombay. 15-year-old मज़े में बड़े मज़ेदार ढंग से उसने ऐसे ही एक मेल लिख दिया कि मैंने यहाँ पर 4 से 5 बॉम्ब लगाए हुए हैं, जो करना है कर लो।
The child was neglected by the parents, and maybe that was the reason of her taking this action, because she wanted people's attention towards her. अब इस केस में आपको क्या लगता है क्या चार्ज होगा? क्या हम सिर्फ आईटी एक्ट के तहत उसको अंदर कर देंगे? यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, बिकॉज ये टेररिज्म का केस हो जाता है, तो साइबर टेररिज्म दैट कम्स अंडर द सेक्शन 66F, तो वो भी लागू हो जाता है. देयर वाज अनदर केस जिसमें प्रतिभा पाटिल की पिक्चर अपलोड कर दी गई थी ऐसे, और उस पर कमेंट किया गया था. Because they are the national entity and national figure, then again the charges become different. So depending on what the crime is, the charges and the penalty is being put on the child. We don't need to get into the technicality. The reason I अलग-अलग imagine cyber terror का काम लग जाए, चार्ज लग जाए, तो लास्ट 2 मजे में कर दिया बच्चे, सोचा ही नहीं कि कॉन्सिक्वेंस क्या है. So whenever you are doing your classroom interaction or your assembly talks, speak about the थोड़ा सा बच्चे आ सकते, so that is the reason scenarios. I think आप सबने जमतारा देखी है? किसी ने देखी है जमतारा? नेटफ्लिक्स पे है. What is it about? मुझे लग रहा है मुझसे अच्छा आप बोल लेंगे, इसलिए बेटर है आप ही बोल लीजिए. मैं सिर्फ फैक्ट चेक कर लेती हूँ उधर. ओके, जमतारा इज अबाउट ऑनलाइन थेफ्ट. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो लड़के मुश्किल से 16, 17, 18 साल के दिख रहे हैं. उन्होंने कहीं डिपिक्ट नहीं किया है कि उनका एज क्या है, हमें कहीं फैक्ट्स चेक नहीं करें, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सारे लड़के 16, 17 साल के जो हमारे लड़कों से बहुत आराम से मिलते जुलते हैं. तो चिल्ड्रन हैव अ टेंडेंसी टू आइडेंटिफाई विद सच क्राइम्स बिकॉज दे फाइंड इट मोर फन. Like अभी I was just doing a career का scenario and I asked the boy, what do you want to be? मुझे तो पुष्पा बनना है. बड़े मज़ेदार ढंग से उसने बोल दिया. But you never know what word, where he used, where it plays an implication. So as a counselor, we just have one thing to do. We need to teach our kids to be very cautious about the words we use, the dreams that we have and how we express it. Because it's very easy to say whatever we feel like. There is very good quote which says that ki, I don't know, I forgot, I'm so sorry on that. So words has a power which is more powerful than the weapon. Words वापस नहीं लिए जा सकते हैं. So that is the counselor's responsibility to teach their kids, teach their students that words have power. They need to be very cautious about what they post, what they comment, and what they repost and what they subscribe. Because we never know what is it linked, what are those hyperlinks which is been attached to something else. That is only the counselor's responsibility. Apart from that, in case there is a legal issues, we need to consult a legal assistant for that. Thank you. Thank you, Malvika. Such an enriched piece of knowledge and how simply she transacted difficult information into simple situation and context. और शायद हम सब उसमें involve हैं equally. Are we here, everyone? Yes or no? Are we in? Are we participating in the session? So those who are not speaking, I request you all, please participate. Because हमारी queries के लिए ये जो platform हमारे seniors ने plan किया है, ये इतनी easily हमें नहीं available होता है. And I would like to request our CICs also कि इस तरह का platform हम अपनी monthly meetings में भी initiate करें. और वो तभी possible होगा जब आप सभी लोग इस चीज़ में participate करेंगे. So come with your situations, case studies which we face every day in our schools.
काउंसलर्स की जो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चली, हमें विजिलेंट रहना है, बहुत सावधान रहना है, चौकन्ना रहना है, बिकॉज कब कौन सी सिचुएशन हमें किसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में डाल दे, उसके लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा. एंड देयर इज़ नो टेक्स्ट बुक फॉर अस काउंसलर्स, सो एवरी केस इज़ इटसेल्फ अ न्यू चैप्टर ऑफ आवर स्टडी. तो हमें उस चैप्टर के लिए खुद ही क्वेश्चंस बनाने हैं, खुद ही उस पार्ट के प्रक्रिया को लिखना है और उसके बारे में जानना है कि इस चैप्टर को आगे कैसे बढ़ाना है. सो वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स. आइए हम सब एक दूसरे को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए शिक्षित करें और एक नए एक्ट के बारे में जानें, एक नई सिचुएशन जानें. अगर आप गेस कर सकते हैं तो एनी गेसेस कि नेक्स्ट कौन सा आएगा अभी? अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो ये आपकी सावधानी, आप कितने चौकन्ने हैं इस सेशन में, इससे पता चल रहा है. अभी अनाउंस हुआ था. थैंक यू. हमारे सीनियर्स की तरफ से ज़्यादा आवाज़ आ रही है. यंगस्टर्स प्लीज़ पार्टिसिपेट. सो ओके सो थैंक यू एवरीवन पार्टिसिपेट करने के लिए. मैं आमंत्रित करना चाहूँगी नंदिनी को नॉर्थ वेस्ट बी जोन से पॉक्सो एक्ट के लिए, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज. आइए. थैंक यू. आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जब आपके पास माइक हो हाथ में तो आप अपने मोबाइल को प्लीज़ नीचे रखें. यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो अपने मोबाइल्स को थोड़ा सा साइड में रखें जब आप माइक यूज़ कर रहे हैं. थैंक यू. Before I invite my esteemed colleague Nandini, I will really appreciate what Divya said, that in these 30 years of work, we have learned from counseling cases, right? Really, there were no textbooks. So we are attempting to impart our learnings with you. You have your own enriched learnings. So this is a platform for exchange of views. हमने बहुत सारी बात की जुवेनाइल जस्टिस पे, आईटी पे, और सब में एक चीज़ बड़ा कॉमन था, पॉक्सो. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पॉक्सो पे हम कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं और कुछ ना कुछ कंक्लूड करते ही रहते हैं. तो आइए केस देखते हैं. बात 5-6 साल पुरानी है. एक टेलीफोन आया स्कूल में कि एक बच्ची जो कि रेलवे स्टेशन पे मिली है, और वो बच्ची न्यूड अवस्था में मिली है, बिना कपड़ों के. अब उसके बैग में उसका आईडी कार्ड था, मोनोग्राम था, स्कूल यूनिफॉर्म्स था. इस वजह से पुलिस को पता चला है कि वो उस स्कूल की बच्ची है. स्कूल में फ़ोन किया गया. स्कूल में फ़ोन करने के बाद स्कूल के एक सीनियर टीचर और एचओएस दोनों एक शीट्स लेकर बच्चे के पास गए. बच्चे को कवर किया गया, उसको वापस स्कूल लाया गया, उसको होश में लाया गया. उसके बाद पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया और बच्चे को होश में लाने के बाद कंफर्ट जोन में लाया गया कि बच्चे की स्थिति पूछी गई, उसे रैपोर्ट स्टैब्लिशमेंट किया गया. फिर उसके बाद उससे पूछा गया कि क्या हुआ था. तो बच्चे के हिसाब से बच्चे ने बताया कि वो स्कूल के लिए निकल रही थी, तभी उसका एक कज़न ब्रदर उसे बाइक पे बैठाता है, कॉफ़ी पीने मेट्रो स्टेशन पे ले जाता है. उस कॉफ़ी पीने के बाद उसको कुछ भी याद नहीं. क्या आप बता सकते हैं ये केस आगे क्या किस चीज़ को लेकर डील करता है? कोई भी. देखिए, ये इंटरेक्टिव सेशन है. हम उम्मीद करेंगे आपका और मेरा एक इंटरेक्शन बना रहे थ्रू आउट द सेशन. तो आप बता सकते हैं ये पूरा केस किस
एक्ट के अंदर आता है? पॉक्सो। हेलो। तो पॉक्सो के अंडर आता है। तो अब इससे कैसे डील करेंगे, कोई बता सकता है? प्लीज माइक दिया जाए। जो पोक्सो की गाइडलाइन है उसके हिसाब से सबसे पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना है, और पुलिस जो भी उसका प्रोसीजर आगे है वो अपने हिसाब से उसको डील करते हैं, और अगर उनको ज़रूरत पड़ती है हमारी तो वो हमें एज ए काउंसलर जो है हमारी हेल्प लेते हैं और हम काउंसलिंग करते हैं। सर ये पुलिस ने ही हमें इन्फॉर्म किया है। ओके, बट फिर भी अगर वो पुलिस ने हमें फ़ोन किया है, बट उसके लिए जो मेडिकल और बाकी जो चीज़ें होती है वो पुलिस के थ्रू ही होती है, और वो स्कूल उसमें जो है किसी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगा। सर सर ने एक बात कही, थैंक यू सो मच सर। सर ने एक बात कही मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या आप बता सकते हैं पॉक्सो के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि ये लड़की है, क्या कोई मेल डॉक्टर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकता है? डॉक्टर है मैम, देयर इज नो मेल एंड फीमेल, डॉक्टर इज डॉक्टर। अगर अवेलेबल नहीं है फीमेल कोई रहेगी अटेंडेंट, देन वो ही कर सकता है मैम। प्रेफरेबली फीमेल डॉक्टर है। इनफैक्ट पॉक्सो में भी ये लिखा हुआ है कि पॉक्सो एक्ट में भी कि फीमेल डॉक्टर शुड बी देयर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन इफ इट इज अ गर्ल चाइल्ड। अच्छा, इसका और कुछ? हाँ श्योर। इसका एक रीज़न है कि जो है मेल डॉक्टर भी इसको कर सकता है। उसका मेन रीज़न ये है कि विदिन 24 आवर्स उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। बिल्कुल। But there should be a female coordinator along with the doctor. Yes, Whether it's there a nurse should be or a female doctor coordinator or a junior doctor. There In has fact, to be some female. yes, with the yes, male sure. doctor. Thank you so much. आप में से कोई बता सकता है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कितनी, मतलब उसके प्रोसीडियर क्या है? लाइक उसमें पेरेंट्स का रहना ज़रूरी है या नहीं है? क्या मेडिकल एग्जामिनेशन में पेरेंट्स का रहना ज़रूरी है? और अगर परपिट्रेटर ही पेरेंट हो कोई मेडिकल एग्जामिनेशन में? हाँ जी मैम। Ma'am, parents will be with the child but not within the room definitely, and if the parent is the perpetrator, we can have some like CSA से child welfare committee के होते हैं, volunteers होते हैं, we can contact them and they stay with the child till the time this medical examination and everything is done. I have gone through with one case and I had contacted child welfare volunteers over there, and they stayed with the child, and they just informed me later on that this case lasted till the morning and we got that medical examination done within the time because many influences were there. So थैंक यू सो मच। जनरली मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन, या आप कह सकते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, या कोई भी ट्रस्ट वर्दी पर्सन जो चाइल्ड को एक कंफर्ट जोन में रखता हो, वो उनके साथ मौजूद रहेंगे सो दैट बच्चे परेशान ना हो। कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है? पॉक्सो के कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? Ma'am, we can call on 112, and if in case like as I said, if parents are involved, then we can call on 1098 also, and we will be filing an FIR, and that can be done from the school part if the parents are involved, and otherwise parents will be doing that, and we can just support them. We can do this thing that in case if the child reported to us, we will be telling it to the parents because child may not be comfortable in sharing, especially when it comes to the girl child. So we can be a way out to tell them, and definitely 109, we have to give them guidance basically. So FIR will be registered. Okay, thank you so much. I have a question here that case happened and I reported it also, and I reported in child helpline, and then I went to CWC committee to present the child over there,
And I also asked them like every procedure we went through, and then I asked them, am I supposed to like do further proceeding regarding that, like complaining in like making the FIR or something. So the child welfare committee said, you don't need to do anything. We will take the like case further, and we will do the further proceedings. So I did not file the FIR in that case. So that happened. एक्चुअली FIR जो है वो फाइल्ड होता है थ्रू चाइल्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट्स. उसके बाद वो हैंडल होता है थ्रू CWC के रजिस्टर्ड NGOs. NGOs आर रजिस्टर्ड अंडर CWC. दे टेक द केस फर्दर. उसके बाद वो पूरी प्रोसेस पुलिस के थ्रू होती है जहाँ पर वो बच्चे के पास जाते हैं. Child should not be there in police station for recording any complaints. Please note, कोई भी बच्चा पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने या कंप्लेन उसकी रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं जाएगा. वो बच्चा वहाँ पुलिस वाले यूनिफॉर्म सिविल यूनिफॉर्म में बच्चे के पास आते हैं. आकर वहाँ बच्चे से रिकॉर्ड उसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स लेते हैं. देन आफ्टर दैट वो प्रोसेस आगे बढ़ता है. इनफैक्ट आपके डिसेबल्ड बच्चे, इनफैक्ट कोई भी डिसेबल्ड बच्चा, आइदर इट्स मेंटली डिसेबल्ड और फिजिकली डिसेबल्ड, उन लोगों की भी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स, जस्ट लेट मी फिनिश, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स ली जाती है सो दैट आगे प्रोसेस फर्दर किया जाए. कोई भी बच्चा पुलिस स्टेशन में नहीं जाता है फॉर एनी रिकॉर्ड, एनी स्टेटमेंट और एनी फर्दर प्रोसीजर. Ma'am, I just want to add on here because one case which was reported from my school, even after that reporting, we got a call from the police station that like I and the teacher, the class teacher, she was there to report that case. Definitely parents were there, but they asked for a statement that you have to come to the police station. But my HOS, she said that you are also not supposed to go to the police station. We did our part. In case if they need the statement, ask the police constable to come to the school. You will be sitting in the school premises only. We will be providing a private space where you can sit and give your statement. Even being a female and being, you know, like you just filed the FIR, so you're not supposed to go to the police station. I'm just sharing this thing because in case if any one of us get into this kind of situation, so we can do that. And for giving our police station, we are giving a statement. We are not criminals. So Exactly. you are not supposed, because once you go to the police station, there are other things also you have to wait for long. And if they will come to take your statement, definitely the things are different. थैंक यू सो मच. मैम एक क्वेश्चन है. हाँ जी. ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है इसको मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या ये करेक्ट है, क्योंकि एक जो बच्ची थी वो बेहोशी की हालत में मिली थी, वहाँ से कॉल की गई थी और टीचर या HOS वहाँ गए और बेहोशी की हालत में उसको स्कूल में लेके आके और फिर उसको कॉन्शियस लेवल पे लेके आना, ये तो कहाँ तक सही? उसको मेडिकल उस सिचुएशन में उसको मेडिकल लेके जाया जाता, ना कि स्कूल में. तो ये मैसेज आ रहा है कि अगर आगे कोई ऐसा केस मिलता है तो हम उसको मेडिकल सुविधा देने की बजाय उसको पहले स्कूल में लेके आए, बजाय कि उसको हमें मेडिकल में ही लेके जाना चाहिए. पहले मेरे ख्याल से यही होना चाहिए. क्वेश्चन है, am I right for your voice? See, we are not saying कि ऐसा होता है. हमने ये लिखा है एक केस में ऐसा हुआ. हम ये नहीं कह रहे कि ये जो हुआ सही हुआ या सही किया गया. केस स्टडी प्रेजेंट हो रही है. काउंसलर वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, एनी राइट. पूरा सिनेरियो करने का मतलब ही यही है आपको पहले से पता हो ताकि ये सिचुएशन ना आए. हाँ नहीं, ये आप देखो कि इन और स्कूल में फ़ोन आता है, दैट मीन्स शॉर्ट में बताइए केस. असल में क्या था कि स्कूल में फ़ोन आया और ये कहा कि उसके साथ में स्कूल का बैग मिला है. बैग में उसका आई कार्ड है जिस पे उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा है. स्कूल का नाम तो होता ही है कि हम स्कूल में पहले फ़ोन कर रहे हैं. अब किसने फ़ोन किया? उस बेहोशी की हालत में स्कूल में लेके आना और हाँ. उस हाँ, अपने आप में ये गलत है. वी एग्री. वो कह रहा हूँ मैं. यस, इट्स रॉन्ग. लेकिन हम जो केस स्टडी क्या कह रहे हैं, जो हुआ, ये तो नहीं कह रहे कि सही हुआ या गलत हुआ. नाउ यू आर आस्किंग यस व्हाट इज टू बी डन. Yes, what is to be done? That's why I'm telling you this. यही क्वेश्चन तो लिखा है, व्हाट विल यू डू. आपके साथ ऐसा केस हो
आप क्या करोगे? स्कूल में वापस ले आओगे? FIR करोगे? सीधे वहां पहुंचोगे, आई कार्ड देखोगे, बच्चा अंडर 18 है, किस एक्ट में आता है? पॉक्सो का केस हो सकता है। अब तो यही नहीं क्लियर है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं हुआ है, या किसी ने छेड़छाड़ में ऐसे ही उसका पता छोड़ दिया उसको। नथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज अनक्लियर। क्लियर करने के लिए ही कुछ तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा, राइट? इसीलिए ये केस यहाँ पे कि आप क्या करोगे इस स्थिति में। 1 2 3 यही तो आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, आप उसमें गलतियां निकाल रहे हो। नहीं, गलतियां नहीं निकाल रहा। सर मैं जो ना जाए बस उसको क्लियर कर रहा हूं मैम। नॉट गिविंग यू सर मैं क्लियर सिचुएशन कि ऐसा हो तो आपको 1 2 3 4 स्टेप वाइज करने हैं, ऐसा नहीं बता रहे। वी आर पुटिंग अ सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू एंड वी आर आस्किंग कि इफ इन योर स्कूल और इफ एनीवेयर इफ यू फेस सच काइंड ऑफ केसेस व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सेस रिगार्डिंग दैट। इस पॉइंट को क्लियर करना जरूरी है। सर इस पॉइंट को हम लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि किस तरह से उन्हें इंटरवेंशन दी जाती है, किस तरह से उनको रिहैबिलिटेशन दी जाती है। अंडर पॉक्सो एक रोल ऑफ काउंसिलर भी है, जहाँ पर पॉइंट नोटेड है कि हर एक काउंसिलर अगर उनके अंडर में कोई पॉक्सो का केस आता है तो वो ट्रॉमा कैसे उसको उस ट्रॉमा से उस बच्चे को निकालेगा, कैसे उसको रिहैबिलिटेशन देगा। ये सारे 4-5 पॉइंट्स हमारे पॉक्सो के अंडर में एज अ रोल ऑफ काउंसिलर के लिए दिया गया है। प्लस ये जो केस है, जनरली अगर सर ने ये बात उठाई है तो हम बता दें, अगर कोई बच्चा इस तरह से मिलता है सबसे पहले ज़रूरी है उसे डॉक्टर या फर्स्ट एड की, आइदर उसको कोई और ब्रूसेस तो नहीं है, कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है, तो वो पहला फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। बट साइमल्टेनियसली आपको पेरेंट्स को भी उसी हिसाब से इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपकी बच्ची इस अवस्था में मिली है। तो ये सारे प्रोसीजर आपके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा, जनरली हम मैम आई जस्ट वांट टू आस्क कि अगर बच्चे के साथ जस्ट इन केस उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है और उस टाइम वो मतलब 17 ईयर्स की थी या 16 ईयर्स की थी, बट इफ़ द चाइल्ड इज़ रिपोर्टिंग आफ्टर 1 or 2 ईयर्स, तो तब ये अप्लाई होता है पॉक्सो या नहीं? पॉक्सो कोई इसका आंसर बताना चाहेगा प्लीज़? होता है। आप अगर पॉक्सो 1, 2 या 3 ईयर्स के बाद भी बोलेंगे और बच्चा रिपोर्ट कर रहा है तो आपको उस चीज़ के लिए एक्शंस लेना मैंडेटरी है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो भी यहाँ पर आपके खिलाफ भी एक्शन ली जा सकती है। एंड इन तो एक सेकंड, पॉक्सो का फुल है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस। कोई भी उम्र का हो, इफ देयर इज सेक्सुअल कम अंडर द एक्ट। अगर कोई हाँ मैम श्योर। Ma'am, I would want to add on here, I may be wrong also. In case there's a case and it is reported by the child to anybody in the school. So whoever is the highest authority, whether it's a teacher or counselor or the coordinator or the HOS, the person will have to report the case and will have to help the child. And in case it is not done by the authority, then the person who is considered authority will also have to face the consequences. And in case this happens after 2, 3 or let's say after how many years, the authority figure will also be considered liable for any consequences then also. I think I have this information because of attending a session. Thank you so much for providing this valuable information. Generally अगर हम पॉक्सो की बात करते हैं तो there is a provision कि अगर आप fake information भी देते हैं देन ऑल्सो एक्शन कैन बी टेकन। 6 month का इम्प्रिजनमेंट है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, देयर इज़ अ कंपनसेशन। कोर्ट विल गिव अ कंपनसेशन टू द विक्टिम। कंपनसेशन भी दी जाती है। मोर और लेस पॉक्सो को लेकर हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। बेसिकली पॉक्सो डील विथ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंस विद द चिल्ड्रन। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस को क्रिएट करना। अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, बच्चों में बताइए कि हाउ योर प्राइवेट स्पेस कैन मेक योर सेल्फ फील सेफ। तो इसमें आप
अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन आपको मिले या कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट हो तो स्ट्रिक्टली उसको रिपोर्ट कीजिए और पॉक्सो एक्ट को अच्छे से अच्छे से उसकी डीलिंग, उसकी जो पॉइंट्स है, डिटेल्स है, आप अपने पास एक नोट बना ले ताकि आपको कोई इशू ना हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरेक्शन। थैंक यू नंदिनी। एज काउंसलर्स दिमाग में एक प्रश्न आया कि मेरी कहानी तुम्हारे बिना अधूरी है। ये एक बच्चे से पूछता है काउंसलर, तो बताओ अपनी कहानी में क्या लिखूं मैं। तो बच्चे का आंसर होता है, यदि मार्गदर्शन सही हो तो एक छोटा सा दीपक भी मेरे लिए सूर्य समान है। हमें वो सूर्य ही उस बच्चे के लिए बनना है, और जितने भी बच्चे हैं हमारे पास, हमें शायद उन्हें वो डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है जिससे हम उनको एक नई लाइफ, या जो ऑब्स्टेकल्स वो अपनी लाइफ में फेस करते हैं उनके सॉल्यूशंस ढूंढ पाए हैं। In a way, we want to make our students independent enough so that when we will not be available in the school, they'll be able to take care of their problems, they'll be able to tackle their situations on their own. इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शायद हम एज काउंसलर्स एजुकेशनल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल, एकेडमिक, पर्सनल, करियर, ना जाने कितने एरियाज़ को रोज़ ही टच करते हैं डिफरेंट बच्चों के ज़रिए। ऐसा ही एक केस अब नेक्स्ट लास्ट जो प्रेजेंट कर रही हैं दीपिका, साउथ वेस्ट बी जोन से, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। आई इनवाइट दीपिका टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। So beautiful. Nice. A loud applause for her. And for us, actually. Good morning, everyone. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं दीपिका, साउथ वेस्ट बी, और मेरा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी केस स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बच्चा है 12 साल का, और वो स्कूल में डेली इतना लेट आता है कि दरवाजे बंद हो जाते हैं। कभी तैयार होके नहीं आता, कभी नहा करके नहीं आता। तो जो टीचर मुझे मिलते हैं वो रेगुलरली मुझे बोलते हैं कि मैम ये रेगुलर तो है ही नहीं, स्कूल आता है तो बच्चों को परेशान करता है, क्लास में बिल्कुल अकेला रहता है, खाना नहीं लाता है, और हमेशा गंदे कपड़ों में आता है, क्लास में इंटरेक्शन नहीं करता। और जो बच्चा इंटरेक्शन नहीं कर रहा तो डेफिनेटली वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा होगा। ये केस लेकर के मेरे पास मेरे स्कूल के HOS आए थे कि हम ये चाहते हैं कि कम से कम ये बच्चा रेगुलर आए तो कुछ तो पढ़ पाए। आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इसके साथ कोई इशू है तो वो किस तरीके का इशू रहा होगा। टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा लीड दे दें कि बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। एनीवन? कुछ ज़्यादा मुश्किल सवाल है क्या? माइक है? नहीं मेरा नहीं, उनका माइक। नहीं वो फिर पेपर्स रखने को। मिनट, क्या आप लोगों के पास ऐसा कभी कोई केस आया कि जो बच्चा बहुत इरेगुलर है, नहीं पढ़ता, या सारे आपके टॉपर्स हैं स्कूल में? जस्ट टेल मी येस और नो। दिस इज ए कॉमन केस, येस और नो। देन आपको क्या लगता है, जो दीपिका पूछ रही है, आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है उनकी तरह का व्यवहार का? मैं सब जिसके पास माइक ले जाऊंगी उसको बोलना पड़ेगा। आप पहले बोलिए। मे बी पेरेंट्स सेपरेट रहते हो, डाइवोर्सी हो, मदर अलग हो गई हो, पापा अलग रह रहे हो, और बच्चे को कोई देखने वाला ना हो, ये हो सकता है। हाँ, ये रीज़न हो सकता है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, अब ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जो फादर है रोज मदर को मारते हो, एंड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द फादर the child might not be able to sleep well at night, and that is why and a mother is already so stressed the domestic violence that she doesn't take care of the child,
and that is why the child wants to go to school as an escape to the father's domestic violence, but she goes late because there is no one to take care of. राइट बानी मैम, आप बिल्कुल ठीक, मतलब जो आपने बताया एक्चुअल में वो मेरा केस है। ऑल्सो मे बी जो फादर हैं वो ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो काम वगैरह भी नहीं करते हैं, और वापस जब घर आते हैं तो मदर को मतलब मारते हो, और हो सकता है वो इसी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हैं बच्चे, राइट, इतना मेंटल ट्रॉमा में है तो राइट। एनीवन एल्स प्लीज? Yes. Maybe. Yeah. Thank you so much. Ma'am, just a minute. To know. Ma'am, there is possibilities कि both the parents are not alive, guardian हो, कोई साथ में रहते हो, वहाँ पे बच्चे को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया जा रहा हो या अब्यूज चल रहा हो या उससे काम भी कराया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, उससे कोई नीड्स मैट ना हो रही हो, सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, इसके अलावा कोई और कुछ आपको लगता है इस केस में हो सकता है? मैम ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के साथ कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया हो जिससे वो भूल ना पा रहा हो। हाँ बिल्कुल। तब वो मेनली वो अपने बारे में भूल जाता है, और वो ये ज़्यादातर भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमें ये फैक्टर्स को याद रखना पड़ेगा कि बच्चा नहा के नहीं आता है, तैयार होके नहीं आता, खाना लेकर के नहीं आता, क्लास में इंटरेक्ट नहीं करता और हमेशा लेट आता है। इन पॉइंट्स पे भी हमें पूरा फोकस करना पड़ेगा। मैम एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, क्योंकि मोस्टली जो बोल रहे हैं वो जो हमारी सोसाइटी में होता है कि जैसे फादर को ही एक रोल बना रहे हैं कि वो ड्रिंक करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं इस टाइप से, लेकिन जो आपने पॉइंट्स ऐड किए हैं कि वो बिना खाने के आता है, बिना नहाए आता है और स्कूल में लेट आता है, तो हो सकता है उसकी मदर भी लड़ाकू प्रवृत्ति की हो, वो बाप बेटे को टिकने ही ना दे। हाँ, ये चीज़ भी हो सकती है। हो सकता है सर। मैम समटाइम्स ऐसा भी होता है कि दोनों मदर और फादर दोनों वर्किंग है, दोनों मदर और फादर दोनों वर्किंग होते हैं, तो उस वजह से वो अपने बच्चे को पूरा स्पेस नहीं दे पाते, अपना उसका टाइम नहीं दे पाते, तो शायद इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ सर, काफ़ी हद तक आप लोग जो पॉइंट्स बोल रहे हैं ये है। जब हमने इस बच्चे को बुलाया, कैन आई स्टार्ट? अच्छा और भी हैं? हाँ जी प्लीज। हो सकता है स्टेप मदर हो, और हो सकता है बच्चे एक माल न्यूट्रिशन का शिकार हो, उसको खाना मिलता ही ना और हेल्थ इश्यूज आ रहे हो, इसलिए वो स्कूल पहुंच ही नहीं पा रहा। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं इन बच्चों। यस मैम। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जब पुअर होता है तो हमेशा ये नहीं है कि पेरेंट्स ही बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं, बच्चा भी पेरेंट्स को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है। ही डोंट केयर। जब पेरेंट्स से उसको रिलेशनशिप ही उसका पुअर है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। एग्जैक्टली। आजकल जो पेरेंट्स हैं वो MNCs में काम कर रहे हैं, सारी रात जगते हैं, कुछ मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ ना, और मेड के हाथों में बच्चा है, 6 बजे मेड आएगी, बच्चे को भेजेगी, पेरेंट्स को पता ही नहीं है क्योंकि सारी रात नौकरी में थे, अब सो रहे हैं। 6 बजे सुबह सोना शुरू करा तो मेड जैसे भी भेज दे बच्चे को। बिल्कुल मैम। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना इंटरेक्शन आप लोगों ने शुरू किया। हेलो। थोड़ा सा लिमिटेशन है, इसके बाद राखी मैम पूछेंगी, फिर आप पूछेंगी, फिर दीपिका। आई थिंक यू वुड लाइक टू कंटिन्यू। हेलो। उसके बाद फिर कंटिन्यू। माई सेल्फ दीपक कुमार, नॉर्थ ईस्ट। मेरा कहना है मैम, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, एक तो मैम ये हो सकता है कि अभी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस भी अच्छी सी ना हो, या फिर उनका पेयर ग्रुप अच्छा ना हो, और अभी हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली खत्म हो रहा है, धीरे धीरे छोटी छोटी फैमिलियाँ बन रही हैं, इसके चलते इंटरेक्शंस कम है। पहले हमारे दादा दादी होते थे, हमें कहानियाँ सुनाते थे, तो एक तरह से हमें एक संबल मिलता था, मतलब एक उन्हें प्यार मिलता था। अभी बहुत तरह का है कि उन्हें इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। अभी हो सकता है अपनी सोसाइटी जहाँ रहते हैं अभी बंद कमरों में है, वो पहले हमारा बड़ा घर भी होता था, अभी छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं, इस वजह से भी हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस ढंग से नहीं हो पा रही हैं, और हमारा घूमना फिरना पेयर ग्रुप भी सही नहीं है। मेरे हिसाब से ये भी फैक्टर्स है जो
बच्चों को, और हो सकता है उनका नेचर भी वो एक्सट्रोवर्ट हो, ये भी हो सकता है बाय नेचर। सर लेकिन नेचर से स्कूल आने का तो मैम हो सकता है ना, अगर वो चुपचाप रहता हो, एमआर हो, बहुत तरह की प्रॉब्लम है, एसीटी वाले उनसे डील करते हैं, उस टाइप के ही बच्चे हो, तो अगर वो डील करें उनसे अच्छे से, हम अगर उनका चैलेंज प्रैक्टिस ना हो तो इस तरह का सिचुएशन हो सकता है मेरे हिसाब से। जी थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट एक चीज ऐसा एक इम्पॉर्टेंट हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं मॉर्निंग असेंबली के लिए। एक टॉपिक भी है चाइल्ड लेबर, जिसमें मेरे पास भी बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें गर्ल्स जो हैं वो सुबह मेड का काम करती हैं। एक्चुअली जो वो अच्छी एफ्लुएंट फैमिलीज में वो लोग कहते हैं कि सुबह सुबह काम तुम नहीं कर पाओगे, यू स्टे इन आवर होम ओनली। वो लोग रात को वहीं पर उनके यहाँ रहती हैं, काम करती हैं, उसके बाद में भाग कर के अपने घर आती हैं, चेंज करती है, फिर भाग कर के आती है। ऐसे कई बच्चों की मैंने काउंसलिंग करी है। अल्टीमेटली हमें बाद में पता चला कि ऐसा हो रहा है और पेरेंट्स भी उनको प्रोपेल करते हैं। तो चाइल्ड लेबर भी एक रीज़न हो सकता है और होता भी है बहुत बार। और जैसे इवनिंग शिफ्ट में क्या होता है कि लड़के रात को काम करते हैं और वो देर से घर पर आते हैं, और फिर इस तरह के इश्यूज भी होते हैं। फिर दिन में फिर वो काम करने के लिए जाते हैं ऑफिस में, फिर वहाँ से वापस आते समय अपने चाय की दुकान पे काम कर रहे हैं, फिर वहाँ से आकर के वो घर पे आ रहे हैं। तो ये एक रीज़न भी हम सस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। हेलो मैम, एक सिचुएशन और है। मेनली क्या होता है, जो माताएं हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं, वो रात रात भर फ़ोन चलाती हैं और बच्चे उनको देख नहीं पाते, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देती, और जब वो सुबह लेट उठती हैं तो बच्चे की एक मजबूरी होती है वो एट अ टाइम बैग उठाए और भागना। तो ये बहुत ज़्यादा अभी का मेन प्रॉब्लम है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ सर। जितने पॉइंट्स आप लोगों ने दिए मतलब मेरी लिस्ट से बाहर है वो सब, लेकिन फैक्ट ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस पे बात कर रहे थे। हमारा मेन जो टॉपिक है वो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसमें मोबाइल नहीं है। हेलो मैम, जस्ट एक लास्ट रीजन, सडन ट्रांजिशन फ्रॉम पब्लिक स्कूल टू अ गवर्नमेंट स्कूल। राइट मैम। And also sudden transition from lower higher socioeconomic status to a lower socioeconomic status. Somewhere kids they do it just to make their parents realize and maybe a motive of a revenge to their parents कि मैं तो ऐसे ही करके दिखाऊं। राइट। हेलो मैम, मोस्ट ऑफ द जो हम मेरे स्कूल में केसेस आते हैं उसमें क्या है, किसी किसी फैमिली में तो बॉयज़ है ही नहीं, गर्ल्स हैं, तो लड़की होने के नाते उन पे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है। मैम मेरा पॉइंट ये है कि बच्चा लेट आता है, खाना नहीं लाता है, नहा के नहीं आता है, स्कूल में रेगुलर नहीं है, इन पॉइंट्स को फोकस करके कि आपके अकॉर्डिंग क्या स्टोरी है। मे बी उसके फादर उसकी मदर को मारते पीटते होंगे, तो सुबह खाना बनाने की हालत में नहीं है, लॉन्ड्री करने की हालत में नहीं है, और उसे जगा ना पा रही हो कि रात में इतने तमाशे हो रखे हैं घर में, सुबह रात को ठीक से सो नहीं पा रहा है। वेल सेड। इसलिए सुबह देर में उठ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैम हो सकता है कि बच्चे की या तो मदर ही नहीं है या फादर ही नहीं है, या जो भी है वो स्टेप फादर या स्टेप मदर है। मतलब न्यूक्लियर से भी वो माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली में वो रह रहा है, और इवन अगर वो फादर के साथ रह रहा है तो फादर हो सकता है ड्रंक करते हो, और पूरा सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे की ओवरऑल। तो फादर इस कंडीशन में ना तो उसकी टेक केयर कर पाएगा, ना ही उसका लंच प्रिपेयर कर पाएगा, ना ही उसे ड्रेसअप कर पाएगा। राइट, थैंक यू सो मच मैम। जब एज अ काउंसलर मैंने उस बच्चे को बुलाया, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, आपके केस की क्या सिचुएशन है शायद हम लोग नहीं अज्यूम कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे स्कूल में एक सेम केस था। एक बच्चा है 12th क्लास का, जो कभी स्कूल बहुत कम आता है, और स्कूल आता है तो आते ही सो जाता है, उठता है तो इधर उधर घूमता है, या बच्चों को मारता है, या फिर क्लास में पढ़ने का तो उसका नाम होता ही नहीं है। तो ऐसे में हम लोगों ने क्लास टीचर्स ने ही मुझसे बात की कि मैम एक बार देखिए क्या बात है, कैसे क्या है। तो उसके फ्रेंड से बात की मैंने कि क्या है अर्जुन के साथ, कैसे अर्जुन क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता है। तो ये अर्जुन जो है एक निक नेम है, ऐसे ही मैं नाम ले रही हूँ, अर्जुन उस बच्चे का रियल नेम नहीं है। तो अर्जुन से बात होने के बाद, अर्जुन के फ्रेंड से बात होने के बाद पता चला कि उसकी मदर जो है वो गांव में रहती है, और फादर एक बर्गर की रेहड़ी लगाते हैं, और उस बच्चे को फोर्स किया जाता है कि रात में स्कूल से जाने के बाद वो बच्चा रेहड़ी पे आएगा और उनके साथ काम करेगा।
उस बच्चे को 11:30 बजे या 12 बजे तक रेहड़ी पे रखा जाता है। फिर वो बच्चा घर पे आता है, खाना बनाता है अपने भाई का, पापा का और अपना। बहन उनकी नहीं है, मदर नहीं रहती है साथ में। आता है वो स्कूल तो सुबह अपने लिए कुछ नहीं लेके आ पाता है, खाना वाना कुछ नहीं कर पाता है। उसको ही सारे घर का काम करना है, सारा काम भी उसको देखना है, साथ में पापा के साथ हेल्प भी करनी है। पापा को जब उसने स्टार्टिंग में बोला 9th क्लास में कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे यही नहीं करना है, तब उस बच्चे को नहीं, पापा ने मना कर दिया कि नहीं, काम ज़रूरी है, पैसे आएंगे तभी काम चलेगा, पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। तो उस बच्चे को आदत हो गई। अब हम लोगों ने इंटरवेंशन में क्या किया, सारी बातें हो गई, अर्जुन से पता किया, सारा सब कुछ ठीक था। हम लोगों ने अर्जुन को मोटिवेट किया स्कूल बुलाने के लिए। सबसे पहली चीज़ थी खाना। हमने मिड डे मील उसके लिए प्रोवाइड किया कि बेटा आप आओ, खाना हम लोग स्कूल में प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी चीज़, क्लास में सभी क्लास टीचर्स की हम लोगों ने एक मीटिंग ली, प्रिंसिपल सर की और मैंने एक मीटिंग ली, जिसमें हम लोगों ने एक चीज़ फिक्स की कि क्लास में कोई भी लेक्चर फ्री हो या अरेंजमेंट्स हो, कोई भी बच्चा हेड डाउन नहीं करेगा। फ्री पीरियड इट डजेंट मीन्स कि रेस्ट पीरियड है आप हेड डाउन करो, आप आराम से बैठो, नो। फ्री पीरियड्स इट मीन्स आप अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन हेड डाउन नहीं करोगे। दूसरी चीज़, हम लोगों ने अर्जुन के लिए एक थोड़ा सा टाइम टेबल उसका अलग सेट किया स्कूल में। जो थोड़ा सा पीरियड ऐसे थे या अरेंजमेंट्स पीरियड थे, उस पीरियड्स में हम लोगों ने उस बच्चे को 1 घंटा या 1.5 घंटे के लिए नींद के लिए, रेस्ट करने के लिए, स्लीप के लिए हम लोगों ने उसको अलग से एक मेडिकल रूम में जाने की परमिशन दी प्रिंसिपल सर ने कि 1-1.5 घंटा तू यहाँ पे सो, असेंबली में मत आ, लेकिन तू क्लास में बैठ बेटा, हर रोज़ स्कूल आना है, और कुछ इश्यू तू हमें बता। जिस दिन मिड डे मील वो नहीं खा रहा था, जो भी था हम लोगों ने अपने लंच में शेयर किया। आज ये सिचुएशन है कि उस बच्चे की अटेंडेंस 100% है। और जो कपड़े की बात थी कि कपड़े धो के नहीं आता या कुछ भी ऐसा है, उसका भी सॉल्यूशन निकाला गया। हम लोगों ने एक सेपरेट उसको एक अलग से एक ड्रेस की और सर ने परचेज करके दी। अब वो बच्चा क्या करता है, एक को धो देता है, एक पहन लेता है, एक आध दिन मेला भी चलता है, लेकिन उसको हम लोग उस चीज़ के लिए नहीं कभी भी मना करते कि बच्चों को भी सेंसिटाइज़ किया, पीयर ग्रुप को भी सेंसिटाइज़ किया कि ऐसे आप नहीं करोगे कि इसने गंदे कपड़े पहने, इसके पास नहीं बैठेंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने उसको नहाने के लिए भी स्कूल में ही अरेंजमेंट करा रखा है कि आप आके नहा सकते हो। एक साबुन, पानी की बकेट और डिब्बा रख रखा है स्कूल में कि आओ नहाओ और क्लास में बैठो बस। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने एक बहुत अच्छी केस की लिस्ट दी मुझे। हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बीइंग अ काउंसलर, मैंने उस बच्चे को बुलाया, वो बच्चा चुपचाप खड़ा रहा। बच्चा बोलता नहीं है, बहुत डरा हुआ है। मैंने उससे बहुत बार बात करने की कोशिश की कि जो भी हम लोग बात करेंगे वो मेरे और आपके बीच में है, और मैं ये हर सेशन में आपको बोलती हूँ, आप जो चाहे मुझे कह सकते हो, आई प्रॉमिस वो बात कभी कहीं नहीं जाएगी। वो बच्चा बहुत नॉर्मल होने की कोशिश करता है, पर जिसकी कंडीशन ख़राब हो उसको नॉर्मल करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब सामने हम उस बच्चे की जगह अगर हम भी होते हैं, हमें कोई इतना अच्छा माहौल देता है, तो शायद हम भी अपना मन खोल देते हैं। वो बच्चा है, उसके पास कोई नहीं है जिससे वो अपनी बात कह सके। एक रैपो बिल्डअप हो जाती है तो वो मुंह खोलता है कि पापा को तो नहीं बताओगे, नहीं बताऊंगी, तो फिर मम्मी को नहीं बताऊंगी, स्कूल में तो आप ज़रूर बता ही दोगे, आई प्रॉमिस मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये हम दोनों का प्रॉमिस है कि जो बात आप मुझे कहोगे वो मेरी और आपकी बात होगी हमेशा के लिए। मेरी क्लास में अनाउंसमेंट तो नहीं करवा दोगे? मैं नहीं करवाऊंगी। बहुत मार खाता हूँ मैं रोज़। जब मैं अपनी माँ को बचाता हूँ, मेरे फादर लेबर हैं, जो कमाते हैं वो शराब में उड़ाते हैं और रोज़ मेरी मम्मी को मारते हैं। मैं छोटा हूँ ना, मैं बचा नहीं पाता हूँ, लेकिन मम्मी के बराबर का पिट ज़रूर लेता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने पापा को रोक पाऊँ, लेकिन मेरे पापा इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। मम्मी इतनी मार खाती है कि उठ भी नहीं पाती है। सुबह खाना बनाना तो दूर की बात है, हम रात भर सोते भी नहीं हैं।
घर से जा नहीं सकते क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है, मम्मी हाउसवाइफ है। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं? और सच्चाई ये है कि इस सिचुएशन में हम भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी हम बच्चे की फैमिली की कंडीशंस को नहीं बदल पाते। हम फादर को ये अगर कहें कि आप शराब पीना छोड़ दीजिए, मारना छोड़ दीजिए, तो वो स्कूल भेजना छोड़ देंगे, लेकिन वो अपनी आदतों को नहीं बदलना चाहते। सबसे पहले हमें समझना ये पड़ेगा व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। जब हमारे करीबी, हम ज़रूरी नहीं कि वो माता पिता ही हों, हमारे रिलेटिव कोई भी हमें हार्म करते हैं, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे सेक्सुअली हो, वो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है। मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक वायलेंस का जो सबसे मेन रीज़न हम लोग निकाल के ला पाए हैं, उसमें बहुत रेयर केस में होता है कि फादर या मदर को मेंटल इलनेस हो, दिमागी रूप से कुछ परेशान हो। अधिकतर जो निकल के आता है या तो वो गरीबी है या बेरोज़गारी है। अनएजुकेटेड तो ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स निकल के आते हैं हमारे स्कूल्स में। कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए कि मम्मी पापा की जल्दी शादी हो गई थी, वो जल्दी पेरेंट्स बन गए, तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि हम अपने बच्चों को कैसे रखें। कुछ पेरेंट्स के जवाब इस तरीके के भी आते हैं, हमारा कल्चर है, मेरे गांव में तो सब मारते हैं, क्या हुआ अगर मैंने मार दिया तो, हमारे यहाँ तो औरतें पिटती हैं। सब्सटेंस एक बहुत बड़ा रीज़न हर केस में ही बनता है, लेकिन एक और रीज़न होता है जब होता है जेंडर बायस्ड। लड़कियां पिटती है, लड़की नहीं, लड़कियां पिटती है। लेकिन इन पिटाई चाहे एक लड़के की हो एक लड़की की हो, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या आता है? हमारा बिहेवियरल सिस्टम कैसा हो जाता है? जो बच्चे अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं वो बोल नहीं पाते ठीक से, घबराहट रहती है उनके अंदर, एंजाइटी जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं। ईटिंग पैटर्न जो है उनका डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस में रहते हैं। ये इनके इमोशनल सिस्टम फैक्टर्स हैं। उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है? या तो वो बहुत डर के रहते हैं या वो ज़बरदस्ती लोगों को पीटते हैं, क्योंकि जो चीज़ देखते हैं वही तो करते हैं। उसके अलावा फिजिकल बच्चों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, विज़न वीक हो जाता है। नॉर्मली हम अपने स्कूल्स में आप सभी ये फेस करते होंगे कि बच्चा हेडेक, पेट दर्द की शिकायत सबसे ज़्यादा बोलता है। उसका रीज़न क्या होता है? तब हर किसी का रीज़न सेम नहीं हो सकता, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई रीज़न निकल के आता है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस होता है। जो बच्चे रेगुलर इस तरीके की कंडीशंस में जीते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक माइंड सेट हो जाता है एक्सेप्टेंस, ये सही तो है, सभी के घर में तो ऐसा होता है, तो मार पड़ भी गई तो क्या हुआ। और वो मार का सिला इस तरीके से देते हैं कि अपनी क्लास में बाकी बच्चों को मारने लगते हैं, स्कूल का माहौल ख़राब करने लगते हैं। ऐसे बच्चों का सोशल डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट तब सेट होगा जब वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चा खुद को विक्टिम मानने लगता है कि शायद मैं कारण हूँ। एक लड़की कारण मानती है कि अगर मैं पैदा नहीं हुई होती तो मेरे फादर शायद मेरी माँ को ना मारते, अगर मैं पैदा नहीं हुई होती तो शायद आज हमारे घर में इतने इश्यूज़ नहीं होते। तो एक लड़की के लिए स्पेशली ये फैक्टर काम करता है। वायलेंस हमें समझ में आ गया। एक हमें ये पता होना चाहिए कि किस वायलेंस में कौन सी पनिशमेंट होती है। फैमिलीज़ में फिजिकल वायलेंस होता है जिसमें सेक्शन 75 JJ एक्ट लगता है, जिसमें मिनिमम 1 मंथ पनिशमेंट एंड 20,000 रुपीज़ जो है वो पेनल्टी है। दूसरा है सेक्सुअल वायलेंस, इसमें अलग अलग सेक्शंस काम करते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो पॉक्सो के किस सेक्शन में जाएगा और उसी की अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट मिलती है। हमारे देश में साइकोलॉजिकल वायलेंस के लिए कोई पनिशमेंट नहीं होती, उसमें सिर्फ काउंसलिंग सेशंस होते हैं।
सेम ऐसे ही अगर बच्चा निगलेक्ट हो रहा है उस केस में भी कोई पनिशमेंट नहीं होती है। हम एज अ काउंसलर, एज अ स्कूल बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल में चला सकते हैं HOS की प्रेजेंस में, जिसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करी जा सकती है। पेरेंट्स को ये गाइड किया जा सकता है कि कैसे वो बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयर करे कि आपकी मार का असर बच्चे पर कहाँ पड़ता है। इसके अलावा हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये गाइड कर सकते हैं, अगर हमारे पास केस आता है, लोकल पुलिस होती है जिसे स्कूल इनिशिएट कर सकता है अपने लेवल पर। अदरवाइज अगर बच्चा घर पे है और हमें बच्चा ये बोलता है कि मेरे साथ ऐसा होता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम बच्चे को ये बात बता सके कि 1098 पर वो कॉल करे ताकि उसको हेल्प मिल सके। ये बेसिक स्ट्रक्चर था डोमेस्टिक वायलेंस का। आई होप मुझसे सारे पॉइंट्स कवर हुए हों एंड थैंक यू सो मच। तो अब हमारा इन हाउस सेशन जो है वो समाप्त हो रहा है और अब लंच टाइम है। पर ये सभी EVGCs याद रखें कि लंच हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। ये वाला सेशन थोड़ा सा लंबा चल गया। हमें कहाँ है? हम आप सब 1:15 तक यहाँ पे वापस आ जाएंगे अपनी सीट्स पे। और दूसरी चीज़ ये याद रखें कि कोई भी EVGC वेन्यू छोड़ के नहीं जाएगा शाम से पहले, पूरा प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले, क्योंकि आफ्टर लंच फिर अटेंडेंस होनी है। और जिनको एब्सेंट पाएंगे फिर वो याद रखें कि एक्शन ज़रूर लिया जाएगा उनके अगेंस्ट। सभी इकट्ठा नहीं उठेंगे। सबसे पहले ओनली ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के काउंसलर्स उठ के चलना शुरू करें। इधर जैसे आप निकलेंगे तो सामने ही हॉल है लंच के लिए। वो ऑलरेडी कहाँ? अभी भेज रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट, वन 1:15 तक आपको डेफिनेटली वापस आ जाना है, याद रखिएगा। नॉर्थ वेस्ट ए, नॉर्थ वेस्ट बी, वेस्ट ए, वेस्ट बी, जिनकी अटेंडेंस की ड्यूटी है वो ज़रा वापस अपने टेबल्स पे पहुंच जाएं, क्योंकि कुछ HOS हमारे साथ हैं, उनकी अटेंडेंस, या जो टीचर्स हैं वो आ गए हैं, उनकी अटेंडेंस ज़रूरी है अभी, तो वो अपने डेस्क पे पहुंच जाएं। और अब बाकी जितने भी बचे हुए EVGCs हैं सभी लंच के लिए प्रस्थान करें। सभी EVGCs और टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1:15 तक आपको वापस अपनी सीट्स पे आना है एंड अटेंडेंस सभी की होगी।